اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ پسینے کا کیا حال ہوگا؟ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ انسان کے جسم سے نکلنے والا پسینہ اس طرح کھول رہا ہوگا، اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح کے کڑاہے میں ابلتا ہوا تیل گھولتا ہے۔ ماں بہنوں کو زیادہ معلوم ہوتا ہے، کھانا بناتی ہے نا، جب وہ کھانا تیار ہونے کو آتا وہ کیسے ابلتا ہے، اسی طرح انسان کے جسم سے نکلنے والا پسینہ ابلے گا، اس پر کھڑا رہنا، ایسی نہیں، کوئی کولر نہیں، کوئی پنکھا نہیں، سورج ایک سے 1.5 ہاتھ اوپر ہوگا۔ مسلمانوں اور نوجوانوں، جتنے مستی کر دیے کر لو، جتنے عشرت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار لو، لیکن یاد رکھنا اس پسینے میں ابلتا ہوا پسینہ ہوگا، اس کے اوپر کھڑا رہنا ہے۔ انشاءاللہ بتاؤں گا ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین حفاظت کے ساتھ رکھے گا۔ ابلتا ہوا وہ پسینہ ابلے گا، اس پر کھڑا رہنا۔ تیاری آپ نے کیا کی؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں، زیرو۔ ہم نے اور آپ نے کچھ تیاری نہیں کی۔ پھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ کیا نبیوں کے جسم پر بھی کچھ ہوگا؟ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں سن لو، کسی نبی کے جسم پر بھی کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ امام کائنات کہتے ہیں سب سے پہلے جسے لباس پہنایا جائے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا۔ ہمارے نبی کو اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا بلند مقام ہے، اور پکا ان کے ماننے والے ہیں ہم، اور نماز میں سب سے پیچھے، نماز میں سب سے پیچھے ہیں۔ اور دوسرے کو دیکھیے تو نماز میں الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھیے تو سب سے پیچھے نماز میں ہم آئیں گے انشاءاللہ، بہت ساری باتیں آئیں گے، وقت ہے 10 منٹ۔ پھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ اتنے سخت دن، لوگ تو مر رہے ہیں، یا رسول اللہ اتنے خطرناک دن، لوگ تو نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، لوگ تو تکلیفوں کے عالم میں ہوں گے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں سن لو، لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ حلقوم سے زبان اس طرح باہر نکلی ہوئی ہوں گی کہ چھاتیوں پر پڑی ہوئی ہوں گی۔ یہ چھاتی پر فرمایا، حلقوم سے زبان اس طرح باہر نکلی ہوئی ہوں گی جس طرح کے سخت گرمیوں کے زمانے میں بھوک اور پیاس سے ننھال کتوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح مردوں کی اور عورتوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی۔ مسلمانوں اس دن سے ڈر جاؤ، اس دن کی تیاری کرو، اس دن کے لیے کچھ سامان مہیا کرو، اس دن کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر لو۔ پھر لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ اتنے خطرناک دن کتنا لمبا ہوگا یا رسول اللہ؟ یہ 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے، دن اور رات ملا کر 24 گھنٹہ، اور پوری زندگی دیکھا جائے تو 60 سال 70 سال، اس کے بعد 60 کے بعد سے عبادت بھی نہیں کر پاتے، لوگ نماز روزہ بھی نہیں کر پاتے، کمزور ہو چکے ہیں۔ یعنی 60 سے پہلے ہی آپ کو جو بھی کر رہی ہے، 60 کے بعد آپ نہ رکوع کر پائیں گے صحیح سے، نہ سجدہ کر پائیں گے، نہ ہی لوگوں کو جا کر تبلیغ کر پائیں گے، نہ لوگوں کو جا کر سمجھا پائیں گے، کچھ بھی نہیں، کسی طرح اپنی زندگی چلے گی، کسی طرح۔ تو 60 سال کے پہلے اپنے آپ کو تیار کیجئے، دوسروں کے لیے بھی تیار کیجئے، وقت سے کیجئے، اپنے وقت کو دین کے کام میں وقت کیجئے۔
जितने यहाँ पर बुजुर्ग हैं, अगर ये कोशिश करना शुरू कर दें कि नहीं हम खुद नमाज पढ़ रहे हैं, अपनी औलाद को नमाज पढ़ाएंगे, अपने रिश्तेदारों को नमाज पढ़ाएंगे, अपने पड़ोसियों को नमाज पढ़ाएंगे, तो इंशाअल्लाह कर सकते हैं। सब कोई कर सकता है, वक्त करना पड़ेगा, अपने वक्त को दीजिए। कितने साल का एक दिन होगा? अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1000 साल का एक दिन होगा। अल्लाह, 1000 साल तसव्वुर कीजिए, सोचिए। 60 साल को गुजारने के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं। 60 साल, एक दिन 1000 साल का होगा, एक दिन। कैसे गुजरेंगे, कैसे गुजारोगे इतनी तकलीफ के आलम में? अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ लोगों के लिए सामान मुहैया करेगा, उन्हें तकलीफों से बचा कर रखेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को हिफाजत में रखेगा। वो लोग सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो कौन है? अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो है जो अपने जिंदगी को अल्लाह की बंदगी में गुजारा, जिसने अपनी जिंदगी को उस जिंदगी का ख्याल करके तपती हुई धूप में आकर अपनी पेशानी मस्जिद में रखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए कुछ बंदोबस्त फरमा देगा। नमाज की बात आ गई, बोल रहा था नमाज 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 नमाज। क्यों बोलता हूं? नमाज बोलने का मकसद क्या है? फिर कुछ नौजवान बाहर खड़े हैं, मस्ती कर रहे हैं। नमाज बोलने का मकसद क्या है? नमाज एक ऐसी चीज है जिसके बगैर इंसान मुसलमान अपने आप को मुसलमान ही नहीं कर सकता। नमाज एक ऐसी चीज है जो ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क करती है। अब वो बंदोबस्त अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेगा? अब सुनिए, 2-4 मिनट वक्त लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सबसे पहले अल्लाह मुझे लिबास पहनाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले लिबास पहनाया जाएगा, फिर नबियों को लिबास पहनाया जाएगा, फिर सिद्दीक़ अकबर को लिबास पहनाया जाएगा, फिर फारूक आज़म को लिबास पहनाया जाएगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझको, फारूक आज़म को, सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह रब्बुल आलमीन हौज़े कौसर पर बिठाएगा। यह हौज़े कौसर क्या है? पीने का पानी। कितनी तकलीफ होगी वो तो बहुत दूर में है कि हौज़े कौसर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तीनों को बिठाएंगे और प्यासे आएंगे, प्यास से उनके चेहरे उतरे हुए, जुबानें निकली हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो मेरी तरफ आएंगे, दरमियान में फरिश्ते खड़े हो जाएंगे, बीच में फरिश्ते खड़े हो जाएंगे, कहेंगे टिकट लेके आओ। वो लोग कहेंगे परवरदिगार वो टिकट क्या है? फरिश्ते कहेंगे पास लेकर आओ। वो लोग कहेंगे या रसूल अल्लाह ये पास क्या है? अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गर्मियों की चिलचिलाती हुई धूप में और सर्दियों की ठिठुरती हुई रातों में वज़ू किया, उसके वज़ू के निशान चमक रहे होंगे। वो कहेगा परवरदिगार ये मैं पास लेकर आया हूँ, ये मैं सर्टिफिकेट लेकर आया हूँ, ये मैं टिकट लेकर आया हूँ। फरिश्ते कहेंगे जाओ, जिसका चेहरा चमक रहा हो, जिसके हाथ चमक रहे हो, जिनके पैर चमक रहे हो, जिनकी पेशानी चमक रही हो, जाए वो पंजे गाना है, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला है।
وہ جائے اور محمد رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौद कौसर का पानी पिए। अल्लाह के नबी कहते हैं जिसने एक प्याला पी लिया, एक प्याला पी लिया, फिर जन्नत में जाने तक उनको प्यास नहीं लगेगी। जिसने इस दुनिया में रह के बंदोबस्त किया, जिसने इस दुनिया में रह के तैयारी की, जिसने इस दुनिया में रह कर आखिरत की फिक्र की। एक हदीस इंशाअल्लाह उसके बाद अपनी तकरीर को। फिर लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, प्यास का तो बंदोबस्त हो जाएगा, साए का क्या हाल होगा? कोई ऐसा घर देखे हैं या कोई ऐसे इंसान है जो बगैर छत के रहते हैं? छत की जरूरत पड़ती है ना, गर्मी से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए। उसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया लोगों ने, या रसूल अल्लाह, उस दिन तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल चटियल मैदान, कुछ भी नहीं, ना दरख्त होंगे, ना बिल्डिंगें होंगी और ना ही घर होंगे, कुछ भी नहीं, और सूरज 1 से 1.5 हाथ ऊपर। क्या होगा या रसूल अल्लाह? साये का कुछ बताइए। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श पे कयामत के दिन अपने अर्श पे जलवागर होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तशरीफ लाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों से कहेगा, ओ मेरे फरिश्तों जाओ 7 किस्म के लोगों को, 7 किस्म के इंसानों को गर्मियों से बचा कर लाओ, परेशानियों से बचा कर लाओ। फरिश्ते कहेंगे या रसूल, कहेंगे या अल्लाह, परवरदिगार कहां लाए? अल्लाह उन लोगों को कहां लाए? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, आज इन लोगों के लिए कोई साया नहीं है, इन लोगों की मदद के लिए कोई नहीं है, जाओ उन्हें मेरे अर्श के नीचे लाओ, आज उनके लिए मेरा अर्श साया बन जाएगा। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह, वो कौन से लोग हैं? परवरदिगार वो कौन से लोग हैं? जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले, बदकारी करने वाले, रील से चलाने वाले। परवरदिगार वो कौन से लोग हैं, वो कौन से बंदे हैं, वो कौन से इंसान हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, शापुन नशा फी इबादतिल्लाह, और मेरे फरिश्तों जाओ उस जवान को बुला कर लाओ जिसको हमने जवानी अता की। उसने जवानी को दीवानी नहीं बनाया, उसने अपनी जवानी को मस्तानी नहीं बनाया, उसने अपनी जवानी को याद में नहीं गुजारा, उसने अपनी जवानी को आलूदगी में नहीं गुजारा, उसने अपनी जवानी को इशरत में नहीं गुजारा, उसने अपनी जवानी को गांव के, कस्बे के, शहर के चौराहों में खड़े होकर गैरों की बेटियों पर आवाज कस्बे में नहीं गुजारा। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जब जवान चौराहों में खड़े होकर गैरों की बेटियों पर आवाज कसा करते थे, जब जवान चौराहों में खड़े होकर गैरों की बेटियों पर कमेंट करते थे, ये अल्लाह की बारगाह में आकर इबादत किया करता था। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, और मेरे फरिश्तों जाओ उस जवान को बुला कर लाओ जिसको हमने जवानी दी, उसने जवानी को दीवानी नहीं बनाया, उसने अपनी जवानी को मेरी इबादत में गुजार दिया। एक नंबर पर, 7 किस्म में एक नंबर पर कौन आया? नौजवान। सबसे पीछे हैं ये लोग, ये नौजवान सबसे पीछे हैं नमाज में, ये नौजवान सबसे दूर है नमाज में, ये नौजवान बुराई में सबसे आगे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मैं इनकी हिफाजत करूंगा, अपने अर्श के साए के नीचे जगह दूंगा इन नौजवानों के लिए जो बदकारी हो, जिनाकारी हो, रील से हो, दुनिया के अंदर जितनी बुराई है ये नौजवान करके बैठे हुए नमाज से दूर हैं। इन नौजवानों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श का साया देगा। किसके लिए? इसके लिए जो अल्लाह की इबादत करेगा, जवानी में इबादत करेगा, बुढ़ापे में इबादत वो तो मजबूरी है,
कह देता हूं, बुढ़ापे की इबादत मजबूरी है। वो जान गया कि अब तो मुझे मरना है, अब करूं तो क्या करूं, अब तो इबादत करनी है, नमाज पढ़नी है, दाढ़ी बढ़ानी है, ये तो मजबूरी है। अगर आप हकीकत में मोमिन हैं, अगर आप हकीकत में मुसलमान हैं, तो जवानी में इबादत करके दिखाइए, जवानी में अपनी दाढ़ी को बढ़ा के दिखाइए, जवानी में गलत काम से रोक कर दिखाइए, तो हकीकत में आप समझ जाएंगे कि हाँ, आप हकीकत में मोमिन हैं, मुसलमान हैं। बुढ़ापे में मजबूरी है, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप भी इन लोगों के जैसे बुरा हो पाएंगे। मौत की कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर कहता है, मौत की कोई गारंटी नहीं है। आप कोई नहीं कह सकते जब पहले सफ में बैठे हुए इस तरह आपकी उम्र हो सकती है या आप जा सकते हो वहां पर, ताकि आप मजबूरी में भी इबादत कर सके, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, आप लोगों से मेरी अपील है, हाथ जोड़ने की इजाजत नहीं है इस्लाम में, पैर पकड़ने की इजाजत नहीं है इस्लाम में। अगर ये भी होता तो मैं वो भी आपके सामने कर लेता कि आप नमाज की तरफ आइए, आप लोगों को दीन की दावत दीजिए, आप लोगों को कुरान और हदीस की दावत दीजिए, अपने ईमान को मजबूत कीजिए। नौजवानों, अपने आप में वो ताकत दिखाइए, अपने आप में वो जज्बा दिखाइए, जिस तरह अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 10 साल तक नबी की खिदमत की है, उस तरह का जज्बा दिखाइए, उस तरह का जुनून अपने आप में लाइए। ये दुनिया सिर्फ धोखे के सामान के अलावा कुछ नहीं है। नौजवानों, इस दुनिया पर धोखा खा रहे हो, धोखा ना खाना ये असल जिंदगी नहीं, वो जिंदगी असल जिंदगी है। अपने आप को जवानी में इबादत की आदत कराओ, अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार की तरफ वक्त